Good evening, guys. My name is Birendra, and I'm from the iasacademia.com. And today I'm going to talk about very extremely important factor from the UPSC point of view, guys. And this factor, I'm telling you, the point which I'm going to discuss, this point is the most responsible factor, for the failure of UPSC aspirants in the UPSC exam. And that is nothing but the mains test series, you know. And that is the reason the main title of this video is going to be the scam, the mains test series, UPSC mains test series could be a scam, okay? Because if I'm not saying test series is always a scam, but it could be a scam. The reason, if we join the test series without any objective or without any purpose, okay, then I'm going to prove all these things. So guys, before we get into the discussion, it is going to be a very short discussion, but I will tell you why. First, we need to understand why do we join the test series? What are the reason behind it, right? So the very first thing, the very first reason, according to me, when we join any test series, the जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है recommendation. Recommendation of whom? Recommendation of some toppers, okay? Recommendation of toppers. This is the first thing which strikes in our mind if before joining any test series. Second thing is we think about the completion of the syllabus, right? This completion of syllabus. This is the second point. Third thing is the art of answer writing. The art of answer writing is the third point which we think कि हाँ हमारी art of answer writing improve हो जाएगी, right? Then the fourth point, guys, is the guidance. कि after writing the test, we will get guidance or the mentorship. Okay, because many institute now they are promising the mentorship program along with the answer writing. Now the fifth point is basically we can say the timely completion of the paper. Timely completion of the paper. This is the fifth major point, major benefits which we seek from the test series. But guys, ask yourself, if this would have been the case, अगर ये सारी चीजें आपको test series से मिलती, why the dropout rate? Why the dropout rate in the test series, specifically mains test series, is 99% and even more. Join बहुत लोग करते हैं, but उसमें 99% लोग जो हैं, they fail. They do not want to attempt the test. उनको there are so many reasons. I'll tell you based on these 5 parameters. I'll tell you why they do not get motivated to write the test. And उसकी वजह से क्या होता है कि guys जो beginning होती है हम लोग की, वही हम लोग की गलत हो जाती है. Wrong beginning, right? यहीं पे, because these are the factors which we consider before joining the test series. But at the end of the day हमको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं. तो उसकी वजह से हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है वो 99% हो जाता है. एंड वी रियलाइजेस दिस आफ्टर फ्यू मंथ्स, लाइक after 3 months or 4 months. I'll tell you how. So पहली चीज guys, कि when any toppers come on the YouTube, they say yes, they have joined the test series in last 3 months from so and so institute, right? Suppose ABC institute से उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की. So guys, इससे क्या रियलाइज हम लोगों को क्या लगता है कि हाँ यार, अगर किसी टॉपर ने एबीसी इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, देन वी शुड ज्वाइन द सेम टेस्ट सीरीज. गाइस, बट हैव यू एवर आस्क्ड कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी दे हैव फॉलोड? What is the strategy they have followed before the joining the test series? Were they really prepared before attempting the mock test for the mains? Yes, only then they joined the test series. But हम लोग वो चीज सोचते नहीं है. हम लोग ये सोचते हैं कि उसने recommend कर दिया, चल के join कर लो. So this is the problem. और बाद में realize होता है कि हमको ये चीज for देखिए, maybe that test series might be beneficial for some section of the student, but might not be for some other section, right? So this is a false misconception, I will say, or the false factor which we consider before joining the test series. Second thing is, guys, completion of the syllabus. Now let me ask you how the mains test series does not basically reveal the fact that it is like it is an indication of completion of the syllabus. The reason is, guys, टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें कितने टेस्ट होंगे? यहाँ पे 15 टेस्ट और 20 टेस्ट, राइट? 15-20 टेस्ट में कुछ टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली सेक्शनल होते हैं, राइट? और कुछ टेस्ट जो होते हैं वो एफएलटीज होते हैं. एफएलटीज में अगेन आपके स्टैटिक पोर्शन आएगा और करंट अफेयर आएगा. सेक्शनल में क्या है? स्टैटिक आएगा, राइट गाइस? सो आपको क्या लगता है कि 20 क्वेश्चंस लिखने के बाद यू विल रियलाइज, यू विल गेन द कॉन्फिडेंस कि हाँ सारे टॉपिक्स आपके उस सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गए हैं?
It is not the case guys. आपको अगर कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, you have to make sure that each and every topic is important for you from the UPSC perspective. Okay, that is what you need to understand, right? So third thing is art of answer writing. Guys, art of answer writing जो है, ठीक है, it is, I know कि after having a discussion, like after you get the evaluated copies from the evaluator, you will get some information about how to improve the answer writing, right? Some improvement you will see, but guys some improvement से, जैसे मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि some improvement से you may score good marks, right? Good marks like 3.5 to 4 out of 10, but it might not help you to get in the list. You have to be the best in the answer writing, which is around 4.5 to 5 marks. If you are scoring, it is considered as a best answer, क्योंकि आपका competition इन लोगों से नहीं है guys, ठीक है? जो 75 to 90 मार्क्स, 80-90 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं सब पेपर में, कंपटीशन इनके साथ है ही नहीं। कंपटीशन तो उनके साथ है जो 4.5 to 5 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं हर आंसर में आउट ऑफ 10। तो कंपटीशन के लिए आपको बेस्ट के साथ कंपटीशन है यहाँ पे, अमंग द बेस्ट, नॉट अमंग द बिटवीन द बेस्ट एंड गुड। गुड्स वाले तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट, इन द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द थर्ड थिंग इज, एक ये भी होता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग द टेस्ट सीरीज जो हमको एक मेंटरशिप मिलेगी, राइट, विच इज ट्रू। आई एम नॉट सेइंग दिस इज लाइक देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट व्हिच आर प्रॉमिसिंग मेंटरशिप, राइट, आफ्टर द टेस्ट, बट गाइस लेट मी आस्क यू, सपोज दिस इज अ मॉक टेस्ट, राइट, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको इसके बाद एक जगह मेंटरशिप मिल रही है, राइट, और एक जगह आपको इसके पहले मेंटरशिप मिल रही है। व्हाट डू यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट? यहां पे आप मॉक टेस्ट दोगे तब तक 1 मंथ ऑलरेडी, या फॉर सम पीपल 2 मंथ्स जा चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मेंटर बताता है कि यार आपके आंसर राइटिंग में ये वीकनेस है, आपने ये सब्जेक्ट कवर नहीं किया, आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से थीम सेलेक्ट करनी चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, कहीं तब तक 2 महीने जा चुके होंगे या 1 महीना जा चुका होगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? नन। इसी जगह अगर आपको मेंटरशिप पहले मिल जाए, फ्रॉम डे वन, कि आपको ये चीज अगले कमिंग मॉक टेस्ट के लिए आपको यही चीज पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है, आपको लगता नहीं है कि यू विल बी एबल टू एटलीस्ट एलिमिनेट द बेसिक प्रॉब्लम you are going to face in the mock test, जैसे कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, टॉप कवरेज ऑफ द टॉपिक, वैल्यू एडिशन पॉइंट्स, तो ये सब चीजें पहले ही कवर हो जाएंगी, राइट। तो जो मॉक टेस्ट में जो वीकनेस हाईलाइट होंगी वो कोर वीकनेस होंगी आपकी। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि मेंटरशिप के नाम पे लोग आफ्टर दैट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। दिस इज रॉन्ग। मेंटरशिप डे 1 से आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ने जा रहा हूँ, व्हाट शुड आई रीड, व्हाट ऑल थीम्स आई शुड कवर, what should the basic tenets of the answer writing that you should learn from the day 1. Okay, then the timely completion. Guys, timely completion, लोगों को लगता है कि टेस्ट 3 से टाइमली कंप्लीशन पेपर करना स्टार्ट हो जाता है, बट लेट मी टेल यू गाइस, जो टाइम वाला फैक्टर होता है आंसर राइटिंग में, राइट, टाइम इट डिपेंड्स, दिस इज ड्राइव फ्रॉम 2 फैक्टर्स, दैट इज योर कंटेंट कॉम्पिटेंसी, कंटेंट, एंड वन इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आपको कंटेंट पता है क्वेश्चन पढ़ते ही, इफ यू नो द डिमांड एंड इफ यू नो व्हाट टू राइट, यू नो द कंटेंट इन द आंसर, एंड इफ यू नो हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, अगर ये 2 चीज, अगर आप इन 2 चीज में एक्सपर्ट हो गए, तो जो आंसर राइट टाइमली कंप्लीशन है, ये गाइस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको टाइम के लिए अलग से फोकस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। उसके बाद गाइस, तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। और एक चीज मैं बोलता हूँ गाइस, द टेस्ट सीरीज व्हिच आर मेड, व्हिच आर फ्रेम्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स, दे आर मेंट, you know, they do not push students to write the test, but they are meant so that you should not write the test, okay, that is the objective. आपने कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद, have you ever seen anyone pushing you to write the test? हर कोई आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट होते ही ये बोल देता है कि हाँ भाई, after 15 days there will be a polity test, okay, after 30 days there will be a modern history test. This is what आपको बेसिकली एक स्केड्यूल मिल जाता है, राइट, स्केड्यूल मिल जाता है, और आपको एक करिकुलम मिल जाता है कि व्हाट ऑल चैप्टर्स और टॉपिक आर गोइंग टू कम। बट इफ यू डोंट राइट द टेस्ट, डू यू थिंक एनीवन आस्क यू व्हाई यू डिड नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट?
क्यों, क्या चैलेंजेस थे आपके लाइफ में, क्या क्यों आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया? ऑब्वियसली चैलेंजेस क्या होंगे कि स्टूडेंट की व्हाई स्टूडेंट डू नॉट अटेम्प्ट द टेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली लैक ऑफ क्लैरिटी ओवर द टॉपिक। कोई पुश नहीं मिलता है हम लोगों को, हम स्टूडेंट्स लोगों को कि क्यों आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है। बेसिक फियर होता है गाइस, एक फियर फैक्टर होता है कि हाउ शुड आई स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। तो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम होती है गाइस जो मिसिंग है, राइट? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों को कि जो टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 90% ड्रॉप आउट रेट, 99% ड्रॉप आउट रेट है, राइट? सो स्केड्यूल और करिकुलम मिलने से तैयारी नहीं हो जाती है, रादर देन वी शुड नो हाउ, व्हाई, लाइक हाउ वी शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। ठीक है गाइज, सो दीज आर ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो गाइज अब आपको ये चीज पता, अब नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ we can overcome all these problems, how we can overcome these problems guys। इसका एक ही, इसके दो मतलब, एक बेस्ट अप्रोच जो मैं आपको बोलूंगा वो ये है कि अगर आपके पास कोई वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ठीक है, या आपके पास फ्रॉम डे वन मेंटरशिप है, फ्रॉम डे वन मेंटरिंग, एक मेंटर आपके साथ है, राइट? अगर ये दो चीज हैं आपके पास, तो आई एम टेलिंग यू, आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ये सारी जो प्रॉब्लम होती है लाइफ आंसर राइटिंग में कि मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है, फियर फैक्टर रहता है, आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं होती है, डिले हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इन दो चीज की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, when like if after getting access to these two things, I'm sure all your problems will be solved। how weekly answer writing helps you guys, एक चीज समझो गाइस कि आप महीने में, ठीक है, अगर आप पूरे वीक में सॉरी एक पूरे वीक मंथ में सपोज एक टेस्ट है, ठीक है, सपोज लाइक वन टेस्ट पर मंथ है, आप अगर मेंस टेस्ट सीरीज में, तो आप महीने में एक टेस्ट लिख रहे हो, ठीक है, तो आफ्टर 1 month यू विल गेट फीडबैक और यू विल गेट अ चांस टू स्पीक विद अ मेंटर। हो सकता है किसी के लिए वो 2 महीने भी हो जाए इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द टेस्ट सिलेबस और फॉर द सब्जेक्ट, राइट? तो इसकी जगह अगर आप सोचो कि आपको वीकली अगर टारगेट दिया जाए, भले ही वीकली आप 5 क्वेश्चंस लिखो या 10 क्वेश्चंस लिखो गाइस, it is more effective, it is going to be more effective than writing the test। भले ही आप 20 क्वेश्चन लिखो या 30 क्वेश्चन लिखो मंथली, once in a month, it is not going to help you। आप डेली आप भले ही एक आंसर लिख रहे हो या 2 आंसर लिख रहे हो, that is matter, that is something extremely important guys। मैं महीने भर का खाना आपको एक दिन खिला दूं, do you think it is more beneficial? और या आप डेली कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहो, भले ही कम खाओ, तो कम खाओ, डेली खाओ, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। बट आप वही सोचो कि मैं महीने में एक दिन बैठ के सारे फ्रूट सारे जूस पी लूंगा, देन लाइक ऑब्वियसली ये सही अप्रोच नहीं होगी। सो दिस इज द lacuna और दिस इज द बिगेस्ट gap in the test series which you have to consider। Okay guys, so just to overcome all these challenges, all these gaps, we like in the IAS Academy, we have launched 2 programs। Those 2 programs, if you are watching my videos, you already might be aware of these 2 programs। One is the analysis, like Excel mains through previous year's questions, okay, that is the analysis of previous year's questions of last 40 years, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट की थीम्स कवर करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट आपका खत्म हो जाएगा, व्हाट टू रीड फॉर द मेंस, व्हाट टू लर्न और रीड फॉर मेंस, ठीक है, तो यहाँ से एक सबसे बड़ा मोटिवेशन और बूस्ट मिल जाएगा। सेकंड थिंग इज समाचार वाणी प्लस, इट इज बेसिकली अ वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको वीकली दिए जाएंगे बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, based on current affair and previous years questions। तो आपकी वीकली आंसर राइटिंग होती रहेगी। आपको जो वीकली आंसर राइटिंग होगी, इसमें वीक इवैल्यूएशन भी होगा गाइस, ओके, इट देयर गोइंग टू बी ए इवैल्यूएशन, ओके। इवैल्यूएशन के बाद यू विल आल्सो गेट अ चांस टू स्पीक विद मेंटर, 1-to-1 डिस्कशन भी होगा, मेंटर डिस्कशन भी है। तो आपको अपनी पर्सनल वीकनेस पता चल जाएंगी कि क्या होती हैं,
तो उससे आपको ये, क्योंकि गाइस जो बाकी टेस्ट सीरीज होती हैं मेंस की टेस्ट सीरीज, वो वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच होती है, ठीक है। उनका स्केड्यूल जो होता है वन फिट साइज ऑल वाला होता है कि नो मैटर वेदर यू आर फ्रेशर वेदर यू आर वेटरन, 15 दिन बाद आपको टेस्ट लिखना है तो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने नहीं लिखा, दैट अपॉर्चुनिटी विल बी गॉन। तो गाइस डोंट यू थिंक दिस इज रैंडम अप्रोच कि यार आपको आप एक फ्रेशर हो, you have just started preparing for the UPSC, and after 15 days if I ask you to write the test, don't you think you, first of all आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा? आप खुद ही सोचोगे कि नहीं यार टेस्ट कैसे लिख सकता हूं मैं, तो योर मनी इज वेस्टेड, राइट? बट मे बी फॉर वेटरन इट माइट बी हेल्पफुल, बट तो बेसिकली ये चीज आपको सोचनी है। सिमिलरली जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं गाइस मेन टेस्ट सीरीज में, दे आर वेरी रैंडम, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर नहीं करता है, जो भी करंट अफेयर में दिखी चीजें उनके ऊपर क्वेश्चंस बना दिया विदाउट एनी बेसिक सोर्स, कोई चीज, because guys I have been a part of this institution for last more than 5 years, I know how the mentoring work, I know how the frames test series are being framed, so I know the each and every loopholes, okay, in the mentoring and even in the test series. So that is the reason we have launched this program to overcome those issues. हम लोग के यहाँ जो टेस्ट mentoring दी जाती है गाइस, वो मॉक टेस्ट से पहले दी जाती है, आफ्टर द मॉक टेस्ट आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी की वजह से बोला जाता है कि 99% ड्रॉप आउट रेट है टेस्ट सीरीज में, and this is going to basically ruin your 1 year. आपको 4 महीने बाद ये सारी प्रॉब्लम रियलाइज होगी, तब तक 4-5 महीने जा चुके होंगे, एंड ट्रस्ट मी गाइस आपको तब रियलाइज होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगेन जब आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी अच्छी, आपको लगेगा कि यार एटलीस्ट लेट्स फोकस ऑन द प्रीलिम्स, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू विल कमिट द सेकंड मिस्टेक। पहली तो बिगनिंग में प्रॉब्लम हो गई, जब आप डिसाइड कर रहे हो कि विच टेस्ट सीरीज यू शुड ज्वाइन जस्ट बेस्ड ऑन द नेम एंड सम रिकमेंडेशन। गाइस किसी और की रिकमेंडेशन से आपकी वीकनेस नहीं फुल होगी, यू शुड फोकस ऑन योर वीकनेसेस, यू शुड फोकस ऑन योर ओन वीकनेसेस, कि कहाँ आपने लास्ट टाइम भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्या वीकनेस थी, क्यों नहीं लिख पाए थे। आई एम श्योर आपकी वीकनेस यही होगी, आपका ऑब्जेक्टिव भी यही होगा लास्ट ईयर ज्वाइन करने से पहले, अभी भी यही ऑब्जेक्टिव होगा। गाइस प्लीज थोड़ा टाइम लो, अपने बारे में सोचो, अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करो, एंड देन डिसाइड व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू। Okay guys, so if you want me to contact, if you want me to personally interact with me, please drop me a message and fill the form which will be given in the description box, okay, of the on this channel. And definitely we have a dedicated mentor, experienced mentor, who are going to interact with the students on one-to-one basis for, and we are going to discuss like कि क्या आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है। आप गाइस कहीं से भी ज्वाइन करो, इट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट एक राइट गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट पीस, ओके। अगर आपको गाइडेंस नहीं है, आपके पास अप्रोच सही नहीं है, सोर्स इज नॉट गोइंग टू बी मैटर। जैसे गाइस बोलते हैं ना, आप कितनी भी अच्छी तलवार चलाना जानते हो, लेकिन अगर तलवार में धार नहीं है, सो इट इज योर लाइक इट इज ऑफ नो यूज। सो तलवार में धार इज व्हाट, इट इज बेसिकली नथिंग, योर कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस आपका एक डेवलप होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। एंड कॉमन सेंस एक एनालिसिस काइंड ऑफ थॉट माइंड डेवलप करने के लिए गाइस, एक यू नीड प्रोग्रेसिव अप्रोच, जो वीकली डेली बेसिस पे आपको काम करना होगा उस चीज के ऊपर। वो खाली आप महीने में एक दिन जाके मेंस की टेस्ट सीरीज लिखोगे, उससे नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 1-to-1, so please do subscribe to this YouTube channel, do like it and put the comment or fill the form which will be given in the description. We will be glad to get in touch with you. Okay guys, thank you so much for your time. Have a nice day.